Welcome to Sai Group Tuition. Myself Parul Modi and you are my 10th standard Gujarat Board students. Dear students, today we are going to discuss the paper style for 2020 and 21. 10th standard GACB Gujarat Board and for special English medium. For Hindi subject, I have given to you. Now for Sanskrit subject, I am giving you the paper style. Students, first want to discuss the chapters which are removed from your syllabus. Okay, for 2020 and 21 board exam, government has removed some chapters for Sanskrit subjects. Okay, now you please take your textbook and open your index page. Students, the following chapters are removed from the textbook. Chapter number 9, Chakshushmana eva andha. Chakshushmana andha eva. Chapter number 14, Kaha idam dushkaram kuryata. Chapter number 16, Adritam yuddham. Chapter number 17, Swabhavikam sadarsyam. Chapter number 18, Muktani muktakani. Okay, this 1, 2, 3, 4, 5. 5 chapters are removed from the textbook for specially you student because of this corona year. Students, grammar part is remained as it is. Abhyas 1, Punravartanam, Kriyapada Parichayah cha. Abhyas 2, Visheshana Prayoga Parichaya cha. Abhyas 3, उपपद विभक्ति परिचय. अभ्यास 4, कृदन परिचय. अभ्यास 5, समास परिचय. एंड अभ्यास 6, संधि, विसर्ग संधि. Okay students, now we will move for the paper style. Okay, dear students, Gujarat Madhyamik and Uchchatar Madhyamik Shikshan Board Gandhinagar for year 2020-21 for Sanskrit subject 10th standard Gujarat board. Okay, students, अब आप गौर करो तो चैप्टर 1 में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. चैप्टर 2 में से आपको 6 मार्क्स के, 3 में से 4 मार्क्स, 4 में से 6 मार्क्स, 5 में से 6, चैप्टर 6 में से 4 मार्क्स, 7 में से 4 मार्क्स, 8 में से 4, 9 इज रिमूव्ड. चैप्टर 10 में से 6 मार्क्स, चैप्टर 11 में से भी 6 मार्क्स और चैप्टर नंबर 12 में से भी 5 मार्क्स. ओके, अब हम चाहते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट 13 में से 6 मार्क्स का 14 रिमूव्ड है, 15 में से 3 मार्क्स का आएगा, देन 16 में से आपको 16, 17, 18 रिमूव्ड है, 19 में से 6 मार्क्स, 20 में से 5 मार्क्स एंड अपठित अनसीन 4 मार्क्स का टोटल 80 मार्क्स. यू गो थ्रू बेटा वन टाइम अगेन, टोटल 80 मार्क्स. वेटेज मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज वेटेज कैसे होगा. व्हाट दे हैव रिटन हियर कि जनरल विकल्प बिना गुण एंड जनरल विकल्प साथे गुण. आप विकल्प यानी आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, नाउ वी गो थ्रू द पेपर स्टाइल. There are 5 sections in this question paper A, B, C, D, E. Total 1 to 61 questions are there. Students, marks are indicated at the right box, at the right side of the question paper, and now the 5 sections are in this way. Vibhag A. Students, dear students, they will give you instruction in Sanskrit, Hindi, Sanskrit, Gujarati and English language. Students, board will give you the Sanskrit paper. In this paper, they will give you instructions in Sanskrit subject, in Gujarati subject, in Sanskrit language, in Gujarati language and in English language, because this Sanskrit subject and Sanskrit syllabus is same for Gujarati medium and for English medium. Vibhag A,
अधोदत्तस्य गद्यखण्डस्य संस्कृतभाषायाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कुरुत कोऽपि एकः 4 marks. You have to translate the one paragraph out of 2. Then next, अधोदत्तानां संस्कृतप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत कयोरपि द्वयोः. You have to write 2 Sanskrit question answers. Okay, out of 3 marks 2. Translation 4 marks. One translation you have to write 4 marks. Then 2 Sanskrit question answer you have to write 2 marks. Next student, अधोदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि गुर्जर या आंग्ल भाषायां लिखत. गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट गुजराती भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश भाषा में लिखेंगे. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश. एनी 2 out of 3 marks are each have 2 marks, यानी 2 multiplied to 4 marks. Then next, अधोदत्तस्य विषयस्य उपरि संक्षेपेण टिप्पणीं लिखत. You have to write one short note. Okay, 1 out of 2 and 2 marks. Next, अधोदत्तं गद्यखण्डं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत. Students, they will give you same paragraph. टेक्स्ट बुक का पाठ्यपुस्तक का पैराग्राफ होगा जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिए होंगे. वो क्वेश्चंस के आंसर लिखने. 4 क्वेश्चन दे विल आस्क. ओके. नेक्स्ट, सेक्शन बी. सेक्शन ए was for prose section. Section B for पद्य विभाग यानी poem section. It is same going as section A. अधोदत्तस्य पद्यखण्डस्य गुर्जरभाषायाम् और आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कुरुत. कस्यापि एकस्य कयोरपि एकः. Any one translation you have to write. Poem translation 4 marks. Then अधोदत्तानां संस्कृतप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत. You have to write Sanskrit question answer 2 out of 3, 2 marks. अधोदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि गुर्जरभाषायाम् और आङ्ग्लभाषायां लिखत. सेम गुजराती मीडियम वाले गुजराती भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भाषा में लिखेंगे. They will ask you 4 questions. You have to write any 3 out of 4 English question answer. Okay, each has 2 marks, यानी 3 multiplied to 6 marks. Then श्लोकपूर्ति कुरुत कयोरपि द्वयोः. Any 2 complete the shlokas. Any 2 you have to write out of 3. Any 2 you have to write out of 3. स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. लास्ट ईयर तक बोर्ड में ओनली 2 पूछते थे और वही लिखने पड़ते थे, कंपलसरी, नो ऑप्शन. नाउ दिस टाइम दे विल गिव यू ऑप्शन. ओके, यू हैव टू prepare 7 shlokas. Chapter 1 2 shlokas, chapter 7 1 shloka, chapter 10 2 shlokas, and chapter 13 2 shlokas. Okay, out of 7 they will ask 3 and you have to write 2 shlokas. बहुत अच्छा आपको चांस मिल रहा है. नाउ सेक्शन सी, नाट्य विभाग यानी डायलॉग राइटिंग. वो प्रोज सेक्शन की तरह ही जाएगा. अधोदत्तस्य नाट्यखण्डस्य गुर्जरभाषायाम् और आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कुरुत. कयोरपि एकः. 1 out of 2 you have to write prose translation which is coming from dialogue chapters. 4 marks. Then अधोदत्तं वाक्यं कः वदति इति लिखत. The following sentence, who says the sentence, to whom you have to write. Who says and to whom, ये दोनों आपको लिखना है. You have to write 2 out of 3 and 2 marks. ये कंपलसरी कहाँ से आएगा? डायलॉग वाले चैप्टर्स में से. बिकॉज बेटा डायलॉग तो डायलॉग वाले चैप्टर्स में ही होंगे, है ना. नाउ चैप्टर नेक्स्ट, अधोदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि गुर्जरभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां लिखत. यू हैव टू राइट इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स. गुजराती मीडियम वाले गुजराती क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. आपको इंग्लिश में लिखना है. 2 out of 3. Each has 2 marks. 2 multiplied to 4 marks. अधोदत्तयोः विषयोः उपरि संक्षेपेण टिप्पणी लिखत. You have to write 1 short note. Sorry, you have to write 2 short note. कयोरपि द्वयोः यानी 2 out of 3. Write short note 2 out of 3. Each has 2 यानी 2 multiplied to 4 marks.
कोष्ठगतानि पदानि प्रयुज्य वाक्ये रचयत. मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके, ये क्या हुआ आपको पता है? संस्कृत वाक्यम अनुवादम, संस्कृत वाक्यम रचयतम. दे विल गिव क्लूज एंड यू हैव टू मेक संस्कृत सेंटेंस. ये इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों बच्चों को संस्कृत सेंटेंस बनाने हैं. दे विल गिव क्लूज. एनी 2 out of 3, 2 marks. नाउ विभाग डी कंपल्सरी. इट विल बी फॉर ग्रामर सेक्शन, व्याकरण विभाग. अधोदत्तानां प्रश्नानां सूचना अनुसारम् उत्तराणि लिखत. You answer the following questions according the instruction which is given in the bracket. First number, शब्दस् ब्लैंक शब्दस्य समानार्थकं शब्दम् अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत. यानी they will give options and you have to choose synonym. Okay, similar word. 1 mark. Here grammar is for 1 mark. ब्लैंक शब्दस्य विरुद्धार्थकं शब्दम् अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत. From the option you choose the correct antonym. 1 mark. अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः वर्तमानकालस्य रूपं चित्वा लिखत. They will give three options in full grammar. Each grammar topic will come for 1 mark and for each and every grammar topic they will give you options. विकल्प यानी ऑप्शन. मेरा बेटा यहाँ पे वर्तमान काल यानी लट लकार का कोई भी रूप आए. सपोज एग्जाम्पल हम लो तो अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः वर्तमान कालस्य अन्य रूपम् अन्य पुरुष एक वचनम रूपम चित्वा लिखत. तो यू अंडरस्टैंड, अन्य पर्सन यानी थर्ड पर्सन एक वचन अन्य पुरुष एंड एक वचन में आएगा ती तह अंति में से ती और ते अंत्य में से ते. तो ती या ते वाला कोई रूप आपको ढूंढना है. 1 मार्क के लिए ही होगा. द नेक्स्ट, अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः सामान्य भविष्य काल रूपम चित्वा लिखत. यू हैव टू चूज द करेक्ट फ्यूचर टेंस, है ना. देन जिसको हम लुट लकार कहते हैं वो भी 1 मार्क के लिए ही होगा. देन नेक्स्ट, अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः आज्ञार्थ अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य या द्विवचनस्य या बहुवचनस्य रूपं चित्वा लिखत. what they have said here, आज्ञार्थ यानी लोट लकार इंपरेटिव मूड का कंपलसरी वो थर्ड पर्सन पूछेंगे. इंपरेटिव मूड का कंपलसरी वो थर्ड पर्सन पूछेंगे. उसी का सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल ढूंढना है. तो यू नो द फॉर्म्स ऑफ लोट लकार. तू ताम अंतु एंड ताम इताम अंता. ओके, अन्य पुरुष के लिए इतना है. बट मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, हमने जैसे सीखा है हम पूरा याद रखेंगे. आनी आओ आम डैश दम तू ताम अंतु. ऐ आवह यामहि स्व थाम द्वम ताम इताम अंतम. ये हम पूरा याद रखेंगे. जब किया है तो भूलेंगे नहीं. 43 नंबर, अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः विद्यार्थस्य अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य रूपं चित्वा लिखतम्. लो, आपकी तो चल पड़ी. आज्ञार्थ और विद्यर्थ जो 10th स्टैंडर्ड में नए 2 लकार आए हैं उसके वो थर्ड पर्सन ही पूछने वाले हैं. तो यहाँ विद्यर्थ में थर्ड पर्सन में अगेन ऑन पेज नंबर 101 एंड 10 जी लोट लकार ऑन 99 and विद्यार्थ पेज नंबर 101. बट यू हैव टू प्रिपेयर फुल टेबल. वैसे याद रखोगे तो अन्य पुरुष में इत इताम इयो हो एंड इत इयाताम इरन. ओके, इसी में से ये लोग पूछेंगे फॉर 1 मार्क. नेक्स्ट, अधोदत्तेभ्यः वाक्येभ्यः स्म प्रयोगयुक्तं शुद्धं वाक्यं चित्वा लिखत. आपको स्म प्रयोग करना है. ओनली 1 मार्क का पूछेंगे. इसमें भी बेटा आपको विकल्प तो देंगे बिकॉज दे हैव गिवन हियर कि जवाब माटे 3 विकल्पों आपवा यानी 3 विकल्प आपको देंगे. एमसी ऑप्शन मिलेगा. नेक्स्ट, अधोदत्तेभ्यः नामरूपेभ्यः ब्लैंक विभक्ति ब्लैंक वचनस्य रूपं चित्वा लिखत. यू नो ना, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी आर डूइंग एंड वी हैव डन इन अवर टेक्सुअल एक्सरसाइज ऑल्सो. नाम पद, नाम शब्द रूप और नाम रूप. तो नाम रूप में आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग
कि जो 8 टेबल है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड पेज नंबर 88 से लेके हमने किए थे वो तो खास याद रखने हैं। 46 में भी नाम रूप आएगा। 47 में उपपद विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत विच इज इन आवर टेक्स्ट बुक एज अभ्यास 3 एंड पेज नंबर 112 एंड 113। ओके, नेक्स्ट ये सारे एक एक मार्क के लिए है। 48 नंबर में आएगा संख्या पद लिखो। बेटा इन विशेषण प्रयोग पेज नंबर 111 पे हमने जो एक्सरसाइज की है वहाँ संख्या पद वाली एक्सरसाइज हमने की है, आपको वो रूप याद रखने पड़ेंगे, 1 मार्क के ही लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट लें 49 नंबर। 49 में है कृदंत। रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकारम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत कृदंत यानी पास्ट पार्टिसिपल यू हैव टू राइट। तो यू नो ना कि वी हैव 6 टाइप ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, वो सारे याद रखने हैं, उसमें से कोई भी एक पूछेंगे। दे विल आस्क यू द सेंटेंस एंड उसमें वो डार्क लेटर में या अंडरलाइन किया होगा, यू हैव टू फाइंड विच टाइप ऑफ कृदंत और विच टाइप ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अधोदत्तस्य संधि विच्छेदम दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। जो स्प्लिट संधि है उसमें भी वो ऑप्शन देंगे। अधोदत्तस्य संधियुक्तम पदम दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। जो जॉइंट संधि है ना उसमें भी इन्होंने लिखा है 3 विकल्पों अपा यानी आपको ऑप्शन देंगे। पूरा ग्रामर दे विल आस्क इन एमसीक्यू फॉर्म और इन ऑप्शन फॉर्म। आपको सभी जगह सारे ग्रामर के हर एक पॉइंट्स में हर एक टॉपिक में ऑप्शन मिलेंगे, पर प्लीज़ ग्रामर का बेस पक्का करना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि 4 चांद लग जाएंगे। अगर ग्रामर के बेस पक्के हैं 4 चांद लग जाएंगे। अधोदत्तयोः लास्ट क्वेश्चन सामासिक पदयोः समास प्रकारो दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखतम्। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समास 2 मार्क्स का इन्होंने यहाँ पे बोला है, बाकी सारा ग्रामर 1 मार्क का है। लास्ट ईयर तक समास 1 मार्क का पूछते थे, पर यहाँ पे इस बार 2 मार्क्स का है। दे विल गिव यू द सामासिक पद एंड यू हैव टू राइट द नेम कि बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, उपपद है, षष्ठी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व या समाहार द्वंद्व है ना, उपपद समास। पूरा सेक्शन सी, सेक्शन डी फॉर ग्रामर सेक्शन, फुल सेक्शन डी ग्रामर सेक्शन एंड टोटल मार्क्स ओके ग्रामर सेक्शन के टोटल मार्क आप गिनोगे तो आपको 16 से 18 मार्क्स हो रहे हैं। 1 2 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मार्क्स का ग्रामर है पूरा। ओके, नाउ विभाग ई, संयुक्त विभाग। सारे चैप्टर्स का मिक्सिंग करके यहाँ पे उन्होंने जो पूछना है वो मैं पेपर स्टाइल में दे हैव गिवन कि अधोदत्तानि वाक्यानि कथान क्रमानुसार स्थापयत। यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। ये तो सीन ही होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से वो वो 4 सेंटेंस देंगे और उसको यू हैव टू रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। नेक्स्ट, अधोदत्तम गद्यखंडम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अगेन दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, बट दिस इज unseen comprehension. You have to read the following passage carefully and write answers in Sanskrit. Oh students, you have to write answers in Sanskrit. And ये पाठ्य पुस्तक के बाहर का यानी पाठ्येतर होगा, जिसको हम पाठ्येतर बोलते हैं, अनसीन बोलते हैं। इसमें मेरा बेटा 4 क्वेश्चंस आएगा, 4 मार्क्स। कर्ता कृति नाम योग्य मेलनम कुरुत। कृति कर्ता, ओके, they will ask 3 and you have to write 2, any 2। बहुत सारा ऑप्शन है संस्कृत सब्जेक्ट में, ग्रामर तो फुल ऑप्शन में है। रेखांकिता नेक्स्ट है, रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्यखंडम पुनः लिखत। यू करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी यू हैव टू रिपेयर द स्पेलिंग्स एंड रीराइट द पैराग्राफ। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वो 3 स्पेलिंग जो रॉन्ग हो गए उसके नीचे अंडरलाइन होगा या तो फिर डार्क लेटर में होगा। यू हैव टू करेक्ट द वर्ड्स, करेक्ट द स्पेलिंग एंड प्लीज
री राइट द फुल पैराग्राफ, पैराग्राफ फुल फिर से नहीं लिखोगे, हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। लास्ट इज अधोदत्तस्य श्लोकस्य गुर्जरभाषायाम् और आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कृत्वा अर्थविस्तारं कुरुत। या दिस इज एक्सपांड आइडिया, है ना? You have to write first translation, then expansion, and then moral. Translate the following verses and explain it or expand the idea. But compulsory you have to write translation, then expansion, explanation, and then last moral. Now students, I think you can able to understand the paper style of Sanskrit subject for 10th standard Gujarat board for special English medium. Okay students, now Vibhag A, B, C, D and E. Vibhag D, which was for full grammar section. Now students, एक एग्जाम्पल यानी एक सैम्पल पेपर हम ले ले, ओके? उसको भी हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये सैम्पल पेपर आई विल गिव। स्टूडेंट्स, ऐसे ही जैसे बोला था एग्जिट, वैसे नंबर 1 and 2 में दे विल गिव 2 प्रोस पैराग्राफ, you have to write 1, translate, you have to translate 1 out of 2, 4 marks, then 2 Sanskrit question answer, then 2 English question answer. This all will come from prose section. Then short note 2, short note 1 out of 2, okay? Then they will give the paragraph and comprehension, which is form in comprehension form. Section B for poem section, poem translation 1 out of 2, पोएम में से 2 संस्कृत क्वेश्चन आंसर, पोएम में से 3 इंग्लिश क्वेश्चन आंसर आएंगे। देन श्लोक पूर्ति, सेक्शन सी फॉर नाट्यांश यानी फॉर डायलॉग राइटिंग चैप्टर, 1 ट्रांसलेशन, 1 पैराग्राफ you have to translate out of 2. Then who said the sentence, this type of exercise. Then English question answer, then short note, and okay, then you have to make Sanskrit sentence from the given clue. Okay, here in all things they will give options. Section D for grammar, full समानार्थकम, विरुद्धार्थकम, वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, आग्नेयार्थ, विध्यर्थ, स्म प्रयोग, देन नाम रूप, देन अगेन नाम रूप, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में से कुछ भी हो सकता है। 47 में उपपद विभक्ति, देन संख्यापद, देन संधि विच्छेद, देन संधि युक्त शब्द, देन सामासिक two words. Okay, section E, rearrange the sentence according to the story. Then unseen paragraph, comprehension, then kruti karta, and then correct the following word and rewrite the paragraph. You have to rekhankitani padani shuddhani krutva gadya khandam punah likhata. You have to repair the spelling and rewrite the paragraph. And in the last they will ask expand idea. Okay, now students, you are able to understand then in which way this time board will ask board will ask you in this Sanskrit paper. Okay, very good thing कि you have only 15 chapters because 5 chapters are removed from our course. Okay, लेस कोर्स है, टाइम हमारे पास ज़्यादा है बिकॉज मार्च की जगह हमारी एग्ज़ाम हो रही है कहाँ पे, मार्च की जगह हमारी एग्ज़ाम हो रही है या मई में। हमारे पास 2 मंथ्स का ज़्यादा टाइम भी है। ओके, एंड
कोर्स भी लेस है, कोर्स भी काफ़ी कम है, हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना मनचाहा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो मार्क्स फुल्ली एज इन मैथ्स you can score now, you can also score in Sanskrit subject. Okay, students, if you have any query regarding this video, you can ask me in our live sessions. Okay, thank you.